Ladies and gentlemen, there is a little time here now for interaction by the press and the identity. That your now government is giving, the moment the parliament is convened, will you bring in a bill that will move to ban people of foreign origin from contesting election? Is that a firm commitment that you are giving today? And is it directed specifically at Sonia Gandhi and the Congress president? In the agenda is a commitment made by the National Democratic Alliance. We do not indicate individual preferences or dispreferences. What is stated here is a principle to which we subscribe. In India should be a person of Indian birth and origin that must hold certain high offices of the Republic. चुनाव के बाद क्या होगा, इसका निर्णय चुनाव के बाद ही होगा। अभी जिन साथियों के साथ लेकर हम चल रहे हैं, उनके द्वारा ये एजेंडा प्रस्तुत किया गया है। अगर नई पार्टियां, नए दल हमारे साथ शामिल होते हैं तो हम उनसे चर्चा करेंगे और निर्णय करेंगे। शिवसेना हमारे साथ है, उसके बारे में आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनका हवाई जहाज देर से आया है, इसलिए पहुंचे नहीं हैं। Sabha Naqvi from Outlook magazine. Sir, the Ram Mandir issue. राम मंदिर इश्यू कंट्रोवर्सी है, क्यों एजेंडा में लाया? राम मंदिर ये सार्वजनिक राष्ट्रीय विचार का विषय है। राम मंदिर के प्रश्न की उपेक्षा करके नहीं चला जा सकता, लेकिन हमने इस बात का भी संकेत दिया है कि वो उसका हल किस तरह से निकाला जाएगा। आपस की बातचीत से समाधान निकाला जाए या फिर कोर्ट फैसला करे, जो फैसला सबके लिए मान्य होगा। ये हमने उल्लेख इसलिए किया है कि हम नहीं चाहते ये विवाद आगे चले या चुनाव का मुद्दा बने। प्रधानमंत्री जी, विजय त्रिवेदी एनडीटीवी से। आपने अभी लखनऊ में कहा था कि यदि अडवाणी को डर है कि एनडीए उनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेगा। अभी मेरे छोड़ने का वक्त नहीं है। I don't think you have a copy of the agenda in your hand. Yes, I have. Now, if you had, then you should not have been asking this question, for the simple reason that the point that has been made here is very, very clear. And I'll read it out so that the whole House gets to know what exactly is said here. The NDA believes that an early and amicable resolution of the Ayodhya issue will strengthen national integration. मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो इसको पसंद नहीं करेगा। दूसरा वाक्य ये है, we continue to hold that the judiciary's verdict in this matter should be accepted by all. तो मुझे विश्वास है कि किसी को भी इस पर भी आपत्ति नहीं होगी। अगला वाक्य है, at the same time efforts should be intensified for dialogue and a negotiated settlement in an atmosphere of mutual trust and goodwill. और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इस पर आपत्ति होगी, क्योंकि ये जो आपस में बातचीत करके मामले को हल करने का प्रयास है वो एक अरसे से जारी है। मैं भी स्वयं उसमें शामिल था जब मैं रेल मंत्री था, जब ये प्रश्न पहले बार आया है। आप सारा इतिहास जानते हैं। एनडीए महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में थी।
लेकिन मतभेद इस सवाल पर हुआ कि आरक्षण का प्रतिशत क्या हो। हम प्रतिशत घटाकर भी आरक्षण लाने के हित में थे, लेकिन और दलों को जो मान्य नहीं था, वो 33.5% आरक्षण चाहते थे। मुझे आशा है कि जब अगले बार हम मिलेंगे तो इस गुत्थी को सुलझा लेंगे और महिलाओं का आरक्षण होगा। प्रधानमंत्री जी विधेयक जब आएगा तो आपको सारे दलों की स्थिति का पता लग जाएगा। हमारा विश्वास है कि विधेयक के पक्ष में बहुमत होगा। हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मति से भी विधेयक पास हो, लेकिन थोड़ा बहुत विरोध हुआ तो उसके बावजूद हम विधेयक को पास करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी Of very special concern for the NDA and will continue to remain so. Secondly, we are committed to the overall total development of all the states in the Northeast, which is not possible without full restoration of peace. The development, that is why one of the items is development and the third item is peace, not necessarily in that hierarchical order. On the act that you have specified, we are committed to the repeal of that act because that act has not subserved the purpose for which it was intended, and there is a very large feeling, a very significant feeling in the whole of the Northeast that has in fact defeated the purpose. The NDA remains committed to repealing it. उसको आप कृपया पढ़ लें एक बार। स्पष्ट हमने कर दी अपनी स्थिति। NDA government has given unprecedented attention to the development of northeastern states in the last 5 years. These gains will be consolidated and placed on a stable footing. Our priorities in the coming 5 years would be restoration of peace and normalcy in all the disturbed regions by dialogue with all groups who are willing to give up the path of violence, and by firmly dealing with those who continue on this path, ensuring that the ethnic identities of all the people in the Northeast are protected. The repeal of the IMDT Act for putting an end to infiltration from Bangladesh. Accelerating economic development that provides growth opportunities to all. Development of the communication infrastructure to overcome the constraints of physical distance. Making all Indians more aware of the rich history and cultural heritage of our northeastern states, including Sikkim. Expanding regional economic cooperation with countries in our eastern neighborhood and in Southeast Asia. भ्रम उन्हीं के मन में है जो भ्रम से ग्रस्त रहना चाहते हैं। हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, आंकड़े विश्वस्त सूत्रों से हैं, सरकारी दस्तावेजों से उसकी पुष्टि होती है। हमने 1 करोड़ का वादा किया था, हम उस वादे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं इस अर्थ में कि हम 88 लाख का रोजगार का प्रबंध, रोजगार और स्वरोजगार उसमें शामिल हैं, दोनों का प्रबंध होगा और ये हमने किया है। इसके बारे में हमें पूरा विश्वास है। संसद में इसके बारे में बहस हो चुकी है। हम संसद के बाहर भी चुनाव के मैदान में इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। बोफोर्स का मामला अदालत में है, अदालती कार्रवाई चल रही है। आज कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए हैं। मुझे विश्वास है कि सीबीआई उनको देखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री जी
पारित किया गया था कि कानून के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और आज जो एनडीए के एजेंडा में कुछ अन्य बात कही गई है, क्या आपने वो बीजेपी ने क्या वो पुरानी जो बात कानून के माध्यम से इसका समाधान निकालने की थी, क्या उसको छोड़ दिया है? हमारे ये तो बीजेपी का नहीं है, ये तो एनडीए का एजेंडा है। छोड़ने का सवाल कहाँ से आया, मगर जोड़ने का सवाल आया नहीं। कारण क्या आपस में सहमत नहीं है। पारित नहीं होता तो एक बार ये बात आई थी कि पार्टियां अपनी तरफ से 33% महिलाओं को टिकट दे सकती हैं। ये के साथ जो पार्टियां हैं वो भी 33% या उसके आसपास जितना देना चाहती हैं दे सकती हैं। क्या पार्टियों को महिलाएं सही ढंग से उम्मीदवार नहीं मिल रही हैं, और अगर नहीं मिल रही हैं तो फिर 30% आरक्षण किया जाए, लेकिन इससे सब सहमत नहीं थे। फिर ये सुझाव आया कि राजनीतिक दलों पर यह मामला छोड़ दिया जाए, राजनीतिक दल एक निश्चित प्रतिशत के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण दें। लेकिन अभी हमने देखा चुनाव में, और पहले भी हमारा अनुभव है कि राजनीतिक दलों पर यह मामला छोड़ने से बात नहीं बनेगी। कोई पुरुष अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप एनडीए ने राम मंदिर का एजेंडा तो उठा लिया, लेकिन जो नेता इस राम मंदिर को यहाँ तक लाया, जिसकी बदौलत आपकी भारतीय जनता पार्टी 2 से 182 हुई, वो नेता ही आज इस मंच से गायब है। मेरा आशय माननीय लाल कृष्ण अडवाणी से। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। वाजपेयी जी, एक मैं जरा गांव की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं आपने फिर तारीख बढ़ाकर 2007 कर दिया है। ये 5-5 साल का खिसकाव क्यों? तारीख बढ़ा के 2007 कर दिया क्यों? हाँ, लोगों को सुरक्षित पेय जल प्राप्त हो, ये हमारा वादा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, साधनों का अभाव है, लेकिन इस दिशा में हम आगे